Hello, good morning to all of you. I'm Dr. Virender Elawat, Training and Placement Officer, the Crust Murtha. First of all, I'd like to congratulate each and every student, those who got admission in the esteemed University of Haryana. You are very lucky to have a campus admission in our university. So I'll be pointing you out about the placement, how the training is to be organized, how the placement session will go, how what are the duties and what are the responsibility you have to perform during your stay here for the next 4 years. So, this is the organization chart of the training and placement cell. The training and placement cell is catering the two activities, training as well as placement, to each and every students who are eligible as per the course curriculum. So first we'll start. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है. ये आपके लिए it will be motivated. You keep on reminding as long as you stay in the university. ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर क्या इरादा किया है. ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है. Hope you will keep reminding and keep on doing each day by remembering this. So the purpose of this training placement cell or the aim of your getting admission in the university is keeping yourself eye on the placement which the university imparting are making you available during your stay. Every student's scheme before admission, the moment they get admission, they keep on working in the direction. It depends upon you how you work the next 4 years. Naturally, you will come to the placement cell in the third year and fourth year. This is the time I can interact you, I can explain you what the first 2 years you will need to do without my interaction. So this is the placement policy. The university has created a placement policy wherein every student will get first offer below 5 lakhs. If the students get the first offer below 5 lakhs, then he is eligible to get the second offer above 5 lakhs. In case the students get the offer initially in the second, the CTC of 5 lakhs and above, then those students are not eligible to claim for the companies which are paying less than 5 lakh CTC. मीन्स जो बच्चे हम एक बच्चे को दो ऑफर देते हैं, एक 5 लाख से नीचे, दूसरा 5 लाख से ऊपर. अगर पहले ही चांस में कंपनी आ जाती है, उनकी ड्रीम कंपनी आ जाती है, जो पहला ऑफर या पहला प्लेसमेंट ऑफर 5 लाख से ऊपर मिल जाता है, तो फिर उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को जो बिलो 5 लाख है उस कंपनी में अलाउ नहीं करते, उस कंपनी में बैठने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसका पर्पज नहीं रह जाता. टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट. जो बच्चा यहाँ आता है उसकी 3 तरह की प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, उस बच्चे को प्लेस मानते हैं. नंबर 1, जिसने कॉर्पोरेट हाउसेज में, एमएनसीज में जॉब मिल गई हो थ्रू प्लेसमेंट कैंपस. दूसरा, बच्चा जॉब नहीं चाहता है, हिज एम इज टू गो फॉर ए हायर एजुकेशन, मे बी इंटरेस्टेड फॉर एमबीए, मे बी इंटरेस्टेड फॉर एमटेक, मे बी interested for IAS, civil service, and so on. So in that case, a person is considered that he has opted for higher education, and we request those students are opting for higher education, they should not sit in a campus placement. Reason being, ultimately, you are not going to join that organization in which you are selected because your aim is to get for a higher education, maybe for the civil services, maybe defense services, maybe MBA
from IIM or IITs. So you have to decide very first day where you are going to lend yourselves after the BTech. Either in a company organization or in a higher education, you are aiming for a private organization job or you are aiming for a government organization. That will decide whether you will choose the first option or you will choose the second option. Third type of placement, if any student is do not want to be the job seeker, but he want to be the job giver. So in that case, he starts his own venture, start his own organization, start his own startups. The government provides a lot of facilities to the students, central government, state governments, banking facilities, funding facilities, then industrial plots, and all kind of technology are being are being provided to the students if the students are opting for self-employment after the BTech or MTech, whatever will be the case. So in that case, training placement cell help to those organizations by arranging all kind of loans, funding, lessons, or have a meeting with the banks or with the industries so that the students are given this facility. Even to that the students are allowed to have their own space in the industry organization in the university after completion of this degree. We will provide as a self startup and he can stay as long as he himself like means जब तक वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपना ऑफिस ले सकता है जब तक वो अपने आप इतनी अर्निंग करनी शुरू कर जाए कि वो अपना ऑफिस अपना स्टार्टअप या अपना जो भी काम है ये ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से बाहर किसी जगह अपना अपनी जगह लेकर के किराए पे लेकर के या अपनी खरीद करके वो अपना काम शुरू कर सके So ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है we provide to all students passing out maybe the BTech, maybe the MBA, maybe the MTech or even science students. Judgment factors, the students are being what they means the companies which are coming here for the placement how they judge the students. They have almost though various factors during their interview, but the major four factors I listed out. First is the technical test. Students are to undergo technical tests. Whatever the 4 years they have done, each students are required to undergo. And I'll advise you, the students should keep a notes of their each subject, small notes, booklet. Those will be required at the end of the third year when they are appearing for the placement campus. Otherwise, students are tend to forget what has been taught in first year or second year or third year when they are appearing for the placement test. So you have to prepare the small notes each subject. Second is the personality and aptitude test. So these are the tests, reasoning test, maybe the pictorial test. All these personality tests are being conducted and the psychological ताकि बच्चे की बिहेवियर पार्ट्स देखा जाए इसके टीम वर्क देखा जा सके कॉपअप देखा जाए स्ट्रेस में कैसे काम कर रहा है उन चीज़ों को उन पैरामीटर्स को देख करके कंपनी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कैसी जगह है उसे कैसा बच्चा चाहिए उस ढंग से उस बच्चे को सिलेक्ट करती है मोटे तौर पे इफ यू हैव ए राउंड होल यू नीड ए राउंड लॉग टू फिट इट if the company have a triangle hole then we need a triangle log to fit it तो एक बच्चा एक कंपनी के लिए फिट है वो जरूरी नहीं कि सभी कंपनीज के लिए फिट होगा दूसरा बच्चा जो एक कंपनी के लिए अनफिट है वो दूसरी कंपनी के लिए एक्सेलेंट फिट हो सकता है क्योंकि उनके अपने पैरामीटर्स है उनकी नेचर ऑफ जॉब अलग है उनका नेचर ऑफ वर्किंग्स अलग है ड्यूटीज अलग है तो उनको देखते हुए दे हैव ए पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर बेस्ड they have undertaken a research what kind of these students or what kind of traits they are looking into these students when they are coming for the campus placement. The students who qualify these tests, is not necessarily all the organization will have a group discussion. Few of the organization conduct the group discussion. So under the group discussions, they want how they are able to have a convincing capacity, convincing knowledge, what kind of knowledge they put into while convincing the students. So that is how they behave in a group of 10 to 12 persons, whether they are a good listener as well as they want to just whether they are a good speaker and they have a convincing power. That is the basic approach.
how they master their own knowledge within 10 to 15 minutes and come out with group discussion with a success rate. Fourth, in interview. This is very important factors. At the end of the day, there is a technical interview, there is a managerial interview, there is a HR interview. First, if we held a technical interview, they will again ask what kind of the test you have attempted. Same thing they will be judging during the interview, whether you have done in the test is almost satisfy your marks in the interview. They may ask you to draw those kind of diagrams. They ask you to apply those kind of knowledge which have been tested in the test. Second is the managerial test. They want to check whether you are able to get the things done through others, whether you have managerial qualities or not. And third, the HR interview. HR interview is looking after your fitment of the place you are going to join or the company is going to offer, your family backgrounds fit into the organization's expectations, or sometimes your family background may interfere in the organizational working. So all those things they are judging, and all the students qualify all these three things. All type of three interviews, he is being given a placement offer. We have a good placement offer, a good placement percentage of our university. You just need to focus on the points which we suggest you during your stay from first year to fourth year. Then how we select the placement process, how we interact with you. We have a policy, the training placement cell. We pick up 3 to 5 students from each class as a training and placement coordinator. They become a training placement cell coordinators, and we interact you with each and every students through these students. These students which are being picked up, they are not being elected. They are being selected by your senior training and placement coordinators. They judge you, they display information or a notice. Those who are interested to apply, they may apply, and they interview. The student themselves interview. And if they find that these are the students, if we require 3 students, they almost recommend 5 students. We take 3, rest 2 are in a waiting. After that, most of the interaction between me and between you is the training and placement coordinators. After that, we have a faculty coordinator. Faculty coordinators take care of the department coordination placement activities. We interact through training placement organization students, that's TPCs, faculty training and placement coordinators, then the PPO. And this is a teamwork. We all three come together and take the boat or ship to placement. After that, registration for placement, each student is required to fill up a form, submit all details for the placement of placement, what kind of the percentage they possess. This database is placed in the training placement cell to share with the organization what kind of the requirement is. So if any students have got changes in the database which they submitted initially, they have an option to update it, upgrade it as and when there are changes in their qualification, percentage of marks, change of address, change of mobile phone, change of email ID. Whatever the performer is being given, if you find any kind of changes taking place at any later stage, you are subject or you are requested to update in the training placements, because that is to be shared with the company. So after that, we have a meeting of all the students, TPCs in our training and placement cell. Faculty is also assisting you in this scheme, in this entire process. And for the interview, to do not have any kind of status symbol, we have decided, this is the student decision, and the students of your senior classes decided to have one dress code. Dress code is not necessarily, this is for the entire university. This could be different from class to class. This could be different from year to year. ये आपकी ड्रेस है. आप 50-60 जितने आपके बैच के बच्चे हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान या बाहर एक्सपेक्ट के दौरान या बाहर से जो इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं उनके सामने आपका ड्रेस कोड क्या है.
इसके बाद जब कंपनी आती है तो हम एक एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी की लिस्ट निकालते हैं। जो बच्चे एलिजिबल हैं दे आर पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस, दोज आर इनएलिजिबल नेचुरली दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस। So what is the placement eligibility criteria? On the basis of which we declare whether you are eligible or not. अच्छी कंपनियां ए ग्रेड कंपनीज हैं, they want a student should possess 60% throughout. Throughout means 10th 60%, 12th 60%, BTech 60%. If a student is in MTech, then MTech 60%. If the students have scored 59.5% in 10th, he is not eligible to sit or to appear in the placement test what is being required by the government. They do not relax any percentile, any small fraction of the percentage. 60 means you must have 60. There are the certain company which pay more than 5 lakh CTC. यानी कि जो 5 लाख से ज्यादा पे करती हैं वो आजकल उन्होंने अपने स्टैंडर्ड थोड़े से ऊपर कर दिए। जैसे वो 60% ना लेकर के वो 70% लेते हैं 10th 12th में, बीटेक में 75% और एमटेक के अंदर भी अगर कोई बच्चा है तो 75%। उन्होंने एक अपना बार ऊंचा कर दिया ताकि वो पहले से एक शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटाइल बेस पे हो जाए, उनको जो अच्छी क्रीम के बच्चे हों। तो जो बच्चे 70 या 75% 10th 12th में हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बीटेक में पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ें, कोई रीपेयर ना लें, 75% पर सेमेस्टर दें। ये कब हम परसेंटेज बीटेक की कंसिडर करते हैं, ये आपके जगह जानना जरूरी है। आप जब 5th सेमेस्टर में हो जाते हैं तब हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। अगर आपका रीपेयर फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, किसी स्टेज का भी है तो दैट रीपेयर विल मेक यू इनएलिजिबल टू सिट इन द कैंपस प्रोसेस। इसलिए ध्यान रखें आपका कोई रीपेयर ना आए। ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे रीपेयर लेके चलते हैं, आने के बाद ये उछल कूद करते हैं और उस एवज में क्योंकि वातावरण खुल जाता है, जब कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालते हुए ऊंची उड़ाने भरता है और गुम हो जाता है अपनी लाइन से या अपनी डायरेक्शन से। इसलिए जो बच्चे बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पढ़ के बच्चे आए हैं, एडमिशन लिया है, तो उन्हें बड़े अच्छी तरह से चलना है। यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको दोनों तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। जिसने अच्छा बनना है वो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसने बिगड़ना है उसके लिए बिगड़ने के भी अवसर मिलते हैं। इसलिए आपने तय करना है कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। जब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आपका अच्छा रास्ता तभी माना जाएगा आप कोई भी रीपेयर ना लें और आपकी परसेंटेज अबाउ 75% हर सेमेस्टर में रहे, तो आपको कभी भी 5th 6th में ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस कंपनी में बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके परसेंटेज मार्क्स आपने जो मेहनत की है उसके बेसिस पे आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो ये आपके हाथ में है, आप उन कंपनी में बैठ पाएंगे या उन कंपनी से बाहर हो जाएंगे। तो इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा प्लेसमेंट के लिहाज से हर आदमी की जिंदगी में एंजॉयमेंट ऐश करनी लिखी हुई डिपेंड करता है वो टाइम कौन सा आप चुनते हैं। अगर एक बच्चा 25 साल से पहले एंजॉय करता है, पहले ऐसो आराम की जिंदगी जीता है या पसंद करता है अपने बाप के दादा के पैसों के ऊपर, तो उसका असर क्या होता है 25 साल के बाद उसको ना अच्छी नौकरी मिलती है, ना अच्छी छोकरी मिलती है, ना उसका आगे का जन्म अच्छी आगे का जो पीरियड है अच्छी तरह से व्यतीत है, क्योंकि उसने ऐसा एंजॉयमेंट ले लिया 25 साल से पहले। वो अब उसके बाद ताउम्र कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा कर पाएगा। और जो बच्चा पहले 25 साल तक ऐसो आराम की जिंदगी को की तिलांजलि देता है, उसको नहीं उस रास्ते पे जाता, मेहनत करता है, और आपके तो 2-3 साल की मेहनत है 22-23 साल तक, और जो इस टाइम मेहनत कर जाएगा वो लड़का IAS भी बन सकता है, और लड़का एक्सिस भी बन सकता है, तो लड़का IIT में जा सकता है, कैट में जा सकता है, अपना कारोबार शुरू कर सकता है। कल आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में 12 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने 50 लाख पॉइंट जीतता है और उस टाइम बोलता है मैंने बड़ा होकर के कार मैन्युफैक्चरर बनना है, एंड दिस 50 lakhs अमाउंट इज ए वेरी
सिली अमाउंट भाई, स्मॉल अमाउंट, मुझे ज़्यादा फंड चाहिए, और उस बच्चे से ए से लेके जेड तक की कोई भी अल्फ़ाबेट बोलिए, उसके लिए 2-3 कार्ड के नंबर बता दें। तो इट मीन्स जब हमारे 12 साल का बच्चा अपनी मंजिल तय कर पाता है, तो आप तो 12 साल के बाद यहाँ आए हैं, पहले सेमेस्टर में आपकी मंजिल, आपका एम, आपने बनना क्या है, अगर आप तय कर गए तो आप कामयाब होंगे। और आप यहाँ पे ये तय नहीं कर पाते आपने बनना क्या है, आपकी क्या मंजिल है, तो आप हमेशा भटके हुए रहेंगे। जैसे बस अड्डे में जो भी बस मिल गई उसमें चल, दिल्ली वाली मिल गई दिल्ली चल गई, चंडीगढ़ वाली मिल गई चल गई, तो ऐसे भटकते रहेंगे। So that is you to decide where you want to go. You have to keep eye on your aim. Then we'll discuss during this session placement record of 2016, 17, 18, 19, and the current. Then the training of the students, company visited in the interest. That's all. What kind of facilities we have in the training placements? Though it is not much concern for you, but as you are the part and parcel of the university, sometimes you happen to interact with the industry persons, then you can explain what kind of facilities. These are the facilities we have. All AC lounge, seminar hall with the capacity of 180 students, conference room, seating capacity of 40, group discussion, committee room, board room, TNP coordinators room, all kind of Wi-Fi, Xerox, all kind of facility what a good organization have in a TNP cell. This university having all those facilities in our TNP cell. Now we are coming to the placement. This is the past performance. On the basis of the past performance, we can expect the future result. So what is the percentage we had in the past 5 years? I'm taking the example, taking the data, sharing the data from 2016 to 2020, and hopefully we'll achieve the almost the same percentile. So on the basis of that, you can decide what kind of the industries are coming and what kind of the job you are looking for. If you look, this is the 2016 record in this slide, where total 331 students were eligible. Out of these, 241 students were placed in job. Then the second kind of placement I talked about, 55 students has gone in a higher education or in a self-employment, and this total comes to 296. और हमारी जो परसेंटेज रही प्लेसमेंट परसेंटेज 2016 की 89%। सबसे अच्छी ज़्यादा प्लेसमेंट हमारे जो आ रही हैं CSC और AC में है, ऑलमोस्ट इनमें काफ़ी अच्छी है वो प्लेसमेंट हमारी देखने को मिले। कई बार तो अब 100% आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अब वो 100% क्या उसकी कि बच्चों ने डबल प्लेसमेंट ली हो। 2017 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स ब्रांच वाइज ये हमने डाले हुए हैं, 51, 35 EC, 58, 48, 42 मैकेनिकल, so total comes to 314, and number of students placed are 222, and the 47 students have opted for higher education or self-employment. Total comes to 269 and percentage placement is 86%. 2018. So again, if you look into the eligible students, the students those who are eligible were 306, 306, और इन 306 में जो बच्चे प्लेस्ड हुए उस साल 176, हायर एजुकेशन में जो बच्चे गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया वो 61 स्टूडेंट थे और टोटल प्लेसमेंट हुई 237. So the percentage placement is 78%. 2019, if you look, eligible students were 293. Number of students placed 156. Higher education 64. Total placed 220, and the placement percentage is 74.6%. Current year 2020, eligible students were 247. Number of students placed 157. Number of higher education students placed for self-employment is 55.
total placement is 212, and this comes to the placement percentage. If you talk about 85.8%. So over the year, if you look into, we were around 80%, 78 to 86%, 89%. And there is a very good percentage of any good institution, even above 75% is a good percentile, good percentage, placement percentage if you happen to. And our organization, the Vikrust Murthal, where you have got the admission, is one of the premier institution of TCS. We are the grade A university. Only the two institutions which are grade A in Haryana, number one, NIT Kurukshetra, and second is UOD Krishnamurti. None of the other organizations above 100, around 150 engineering institutions are enjoying the A grade status. Again, the TCS has earmarked the premier institution throughout India, around 45 institutions. We are among the 45 institutions which are the premier institution, the Krishnamurti represent. Where every year we have various kind of meetings with the TCS. TCS is one kind of the organization which keep on visiting our organization time and again and interact with the students at each semester after second year. If you have a glance from the 2009-10 to till now, these are the placement, number of eligible students, and number of placement, and this is the pay package. The pay package we talked about in 2009-10, we were having the 5.5 average, the highest package average by 3.31. If you look into the present 1920, the current year, the highest package was 10 lakhs and the average package was 4.5 lakhs. So ultimately, the students are passing out with handsome salary package from this university, going the organized, staying in the industrial world for 2, 3, 4 years, and they make their own career where they want to land in that area, what industrials they are looking for. Companies listed in the deep crust are TCS, Tech Mahindra, Fidelity, Lava, Idea. These are the industries you can go through the list of which even on the slides, Jindal Stainless Steels, Hisar, then Agarwal Keeps, then Minor Lens, Agarwal Online Shopping, Joe's Technology. So these are the list of around 60 to 70 kind of the company, 71 companies are usually out of these companies are coming to the campus placement. These are the few snaps, Fidelity. So before I end the placement session, I'll again say it is you, the students who are coming in the first year. Now the scenario has been changed due to the COVID. Most of the time you have to work from home. Now your teacher is the Google Guru. So from the Google, you can learn alone, learn computer language. Any students who are not able to learn one or two language, whether the students belongs to any branch, computer, electronics, it is mandatory for them to excel in this area. But my request is to the students who are opting for civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, they should also opt one or two language, make them make use best use of this period where you are at home to learn C++ or Java or any other good language. क्योंकि आज का ज़माना कोई भी ऐसा नहीं है इक्विपमेंट जिसमें चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल है जिसके अंदर ड्यूल टेक्नोलॉजी ड्यूल ट्रेड का यूज ना हो उसमें कंप्यूटर का यूज मिलेगा उसमें ऑटोमेशन मिलेगा उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल का आइटम हो चाहे मैकेनिकल उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज मिलेगा तो इसलिए जो बच्चे कंप्यूटर में एक्सेल करेंगे उनका भविष्य बेहतर होगा बाकी दूसरे बच्चों से जो अपनी ब्रांच के सिर्फ कोर में जा रहे हैं और बाकी उन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
तो आप जो जितना आपके कोर्स करिकुलम से अलहदा जो चीजें आप लर्न करेंगे वो आपको बाकी क्लास के बच्चों से अलग दिखाएंगे, और जो बच्चे अलग दिखेंगे वो अच्छे पे पैकेज पे जाएंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे, और उनको कैंपस प्लेसमेंट के साथ साथ ऑफ कैंपस इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। दूसरी जो मेजर चेंज आया है, पहले कंपनी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करती थी, इस साल से all institution more or less becomes equal as long as placement is considered, क्योंकि वो एफएसआई देती है पर वो पैन इंडिया टेस्ट भी लेने लगी है। तो पैन इंडिया इंस्टीट्यूशन में जिन बच्चों की, जो बच्चों की एलिजिबिलिटी, बच्चों की कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बजाय कि इंस्टीट्यूशन की बैकग्राउंड। इसलिए आपने अपना बायोडाटा इतना एनरिच कर देना है, इतना एनरिच कर देना है, आप चाहो तो जो कंपनी आईआईटी के बच्चे जा रहे हैं उन कंपनियों में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। डिपेंड्स ऑन you able to keep your knowledge update with the latest technology। तो इसमें आपने देखना है, जो आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, जो आप आज एडमिशन लिया तब आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जब आप पास आउट होंगे वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि जहाँ जो कंपनी आईआईटी की कंपनी थी जो हमारे यहाँ नहीं आती थी, अब पैन इंडिया में उन सब बच्चों को मौका मिला, तो यू कैन अपीयर ऑन दोज टेस्ट, ज्वाइन दोज कंपनी जो पहले नहीं आती थी। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ आपके लिए थ्रेट भी है। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाह हुए तो जो आपसे नीचे के इंस्टीट्यूशन है, जिनको सी ग्रेड इंस्टीट्यूशन है, बी ग्रेड इंस्टीट्यूशन है, उनके बच्चे अगर वो अच्छा एक्सेल कर जाते हैं तो आपको पीछे छोड़ देंगे, वो अच्छे प्लेसमेंट लेंगे। अब आपने देखना आपने क्या मंजिल तय की। जो मैंने शुरू में बताया था, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो ये आप देखना, अगर आपके स्वप्न अच्छे हैं, बिग थॉट्स हैं, ऊंचा स्वप्न है, तो आप कामयाब है। अगर आपके स्वप्न नहीं है तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, अपने आप को अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले जा पाएंगे। यही इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे आईएएस बने हैं। अगर आप ज्यादा पुराना ना देखें तो पिछले साल यानी इस साल के अंदर ही शुरुआत में जो यूपीएससी की लिस्ट है मिस्टर मलिक, वो हमारे ही सीएससी का बच्चा है। उसकी कैंपस प्लेसमेंट हुई टीसीएस, he served in TCS for 3 years। उसके बाद वो सीजीएल के थ्रू उसने जॉब लिया। उसके बाद he topped the यूपीएससी एग्जाम throughout India। Now you can think you are the part and parcel of that institution जिन्होंने टॉपर दिया आईएएस के अंदर। और ये एक नहीं है, there are n number of students who are part who are in admin services, IAS services, IPS services, हरियाणा सिविल सर्विसेज, सीजीएल, और जितनी अच्छी अच्छी आपकी कंपनियां जो टॉप कंपनियां हैं उनमें है। और बहुत सारे अच्छे बच्चे हमारों ने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू किया है। जो जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर है, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं। और मैं मानूंगा जो तीसरा जो जॉब है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप में बहुत ही अलग तरह का तजुर्बा उसमें आएगा। जो बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा, अपना काम शुरू करेगा, उसकी जो सैलरी या उसकी जो अर्निंग होगी आज के जमाने में, वो दूसरे जो बच्चे जॉब करें उनसे शायद 2, 3, 4 गुना ज्यादा हो। तो आप साथ साथ ये भी अपॉर्चुनिटीज देखें कि आप कहाँ पे आप उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। देन वी हैव इनोवेशन फंड इन आवर यूनिवर्सिटी। 70-75 लाख रुपए अब भी हमारे पास वो है। जो बच्चा नई इन्वेंशन इनोवेशन करता है अपने किसी टीचर के साथ, उसमें अप्लाई करे, उसका पूरा फंडिंग यूनिवर्सिटी करेगी अपने नई खोज के लिए, और उस खोज का फायदा उठा सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट, अगर आपका आइडिया ऐसा आ गया जिसको हम उसका कॉमर्शलाइजेशन करें, तो आप उस आइडिया को हमारे पास लेके आइए। विल फाइंड आउट द कंपनीज जो आपकी आइडिया का कॉमर्शलाइजेशन करे, और कुछ रॉयल्टी आपको 10%, 15%, 20% जो भी होगी वो आपको मिलती रहे। अगर वो आपको मिल जाती है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी वो रॉयल्टी सप्ताह मंथली आ जाती रहेगी कि आप कुछ बताओ। इन दैट केस यू आर स्टिल 4 years टू वर्क ऑन इनोवेशन। कितनी अच्छी आप खोज कर पाएंगे, कितना अच्छा इनोवेशन कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन कितनी अच्छी कंपनी उसको कॉमर्स में उसको आपके प्रोडक्ट को या आपके आइडिया को डालती है।
is the placement. Now, training. Before that, we have the from when you come here, placement as well as training may go side by side. That's because earlier we have the training every after third year, second year and third year, 2 months. Now there's option that this will be training for the entire one semester, maybe the last semester, where you go in a training and you join the job. It depends upon if we come out with the COVID. Training procedure. We impart and we allow the students go in the industries, stay there. Earlier it was 2 + 2, 4 months. Now it is 6 months and one semester. And you happen to there, you are able to establish a good relation with the organization. वहाँ पे आप एक उनकी एसेट बन जाते हैं, उनके लगने लगता है कि ये बच्चा हमें चाहिए, इस बच्चे के बिना हमारा काम अधूरा होगा। ये अगर आप अपने आप को इस ट्रेनिंग के दौरान इतना अच्छा साबित कर पाते हैं कि आप उनके लिए एक वर्थ बन जाते हैं, तो आपको पीपीओ ऑफर कर देते हैं। पीपीओ क्या था? प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपको प्लेसमेंट ऑफर में नहीं, प्लेसमेंट प्रोसेस में नहीं जाना, वहीं से वहीं इस कंपनी के अंदर जब आप आएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो आपको कंपनी पहले प्री प्लेसमेंट ऑफर कर देगी। ये चेंजेस क्यों किए हैं? पहले जो थर्ड सेमेस्टर में थे बच्चे, सेकंड सेमेस्टर, वो काफी अच्छी कंपनियों में अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आए थे कि उनका हार्डवर्क इतना था, कंपनी चाहती थी कि हम इसे रखें, पर क्योंकि उसके आने बाद एक साल फिर फोर्थ ईयर में हमारे पास ट्रेनिंग में जाने का वो नहीं था, तो बच्चे अपना वो जॉब देखते थे, अपने कैंपस प्लेसमेंट करते। पर लास्ट ईयर पिछले 5-6 साल से थर्ड ईयर यानी कि प्री फाइनल ईयर में जो बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं वो पीपीओ लेके आए, फिडेलिटी और कई कंपनियां जो उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर देती है। और फिर जब कंपनी कैंपस प्लेसमेंट आती है, उन बच्चों को ना ये जो मैंने बताए थे, ना टेक्निकल टेस्ट देना होता, ना साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होता, ना ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता, ना इंटरव्यू में, क्योंकि उनके पास प्री प्लेसमेंट ऑफर है और उनको इमीडिएटली वो प्लेसमेंट ऑफर जो दूसरे बच्चे कैंपस प्लेसमेंट में उससे पहले ही ऑलरेडी सिलेक्टेड, सो दे आर हैविंग अपर एज बिकॉज ऑफ देयर good hard work, commitment, dedications they are shown to the employer during their training period. On the basis of that, they could be replaced. अब आपके ऊपर है, जब आप ट्रेनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपको लोग उठा के आइए कि आपको जॉब पीपीक्यू लेके आया। एक बच्चा ट्रेनिंग सभी करके आ रहा है, एक बच्चा पीपीक्यू लेके आ रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ आके फिर देखेगा मैंने टेस्ट देने हैं, मैंने इंटरव्यू देने हैं, मैंने जीडी देना, मेरे को प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ट्रेनिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए प्लेसमेंट। जिसकी ट्रेनिंग अच्छी है उसको प्लेसमेंट अच्छे मिलने की गारंटी है, ये मेरे से जो बच्चा ट्रेनिंग ध्यान से नहीं करता है, बच्चा ट्रेनिंग में पूरा अपने कोई शॉर्टकट अपनाता है, तो फिर उसका शॉर्टकट प्लेसमेंट में अपने आप हो जाता है, उसको छोटी जॉब मिलेगी या ना मिलेगी। तो इसलिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में हम क्या करते हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में आएंगे उनको उनकी चॉइस मांगते हैं, तीन चॉइस मांगते हैं, आपको किस किस कंपनी में ट्रेनिंग करना है। उन कंपनीज को हम लेटर लिखते हैं, इन बच्चों को भी लेटर देते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं, जो उनकी पसंदीदा कंपनीज है जिनमें ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे उनके टॉप की कंपनी हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने घर के नज़दीक जाऊं, तो जो घर के नज़दीक वाले जो बच्चे हैं इनका कैरियर उतना राइज नहीं करेगा। जो बच्चे चुनते हैं कंपनी अच्छी होनी चाहिए, घर के नज़दीक हो या घर से दूर हो, इसका हमें कोई लेना देना, डिस्टेंस इमेटीरियल, बट कंपनी इंपॉर्टेंट हो। तो ये आपकी मर्जी है, आप कौन सी 3 कंपनियों में जाना चाहते हैं। हम तीनों कंपनी को लेटर लिखते हैं, जो आपकी मर्जी होगी उसमें आप ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग लेटर हम हर एक बच्चे को 3 लेटर देते हैं, फिर जरूरत पड़ जाए तो और भी ज्यादा देते हैं। कई बार बच्चे ने ट्राई किया, उसमें उसको सीख नहीं मिली, दूसरे में देना पड़ गया, दूसरे का लेटर देते, तीसरा। उसके बाद जब कंपनी मार्च तक ये हम प्रोसेस पूरा कर देंगे, उसके बाद जो कंपनी आएगी कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। कंफर्मेशन लेटर मिलने के बाद हम हर बच्चे को जिसकी उसकी पसंदीदा कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद हम ट्रेनिंग में उन्होंने डूज डोंट्स क्या करने हैं, एक लेक्चर लेकर के उनको सबको बता दिया जाएगा, क्लास वाइज या ईयर वाइज। ये ढंग से हम वो क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वी कैन गिव आवर एक्सपेक्टेशन व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट। सरप्राइज चेकिंग भी होती है, हम भी जाते हैं पीपीओ भी, या फैकल्टी जितने मैंने बताया फैकल्टी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से,
वो भी आपके सब चेकिंग मारेंगे बगैर किसी इंटीमेशन के। वो कहीं भी आकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। और इसके बाद जब आप कंप्लीट कर जाएंगे ट्रेनिंग, आप अपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। उसके बाद जो चेयरपर्सन है उनको हम एक रिपोर्ट देते हैं, किसकी रिपोर्ट सही है किसकी गलत, और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के पास भी रिपोर्ट चली जाती है whether this training is to be accepted or not। मोटी चीजें क्या है, आपकी कंफर्मेशन, आपकी ज्वाइनिंग और आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तीनों एक ही कंपनी के होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों एक ही कंपनी के हैं तो आपकी ट्रेनिंग मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाएगी। और चेंजेस क्या है, ड्यूरिंग जो ये कोविड सिस्टम है, इस दौरान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को दे दी है, क्योंकि इतने बच्चों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करना, इंडिविजुअल इंटरेक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रेनिंग प्लेसमेंट। सो इस दौरान जितनी भी ट्रेनिंग की पार्टी, अगर कोविड के दौरान ये चलता रहता है तो आपकी डिपार्टमेंट विल असिस्ट, फैकल्टी एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स विल हेल्प यू आउट। मैंने बताया हाईलाइट्स ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज, वही जो ये डायग्राम है, इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हीं के पॉइंट्स पे ये आप चले। ट्रेनिंग जो 2016 में है, ये बच्चों ने ट्रेनिंग की, ऑलमोस्ट विल लुक इनटू इट, अबाउट 94% स्टूडेंट्स हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन सेकंड ईयर, दे हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। कुछ बच्चे हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाए, मे बी 1 2 3 4, देयर आर द वेरियस रीजन, में भी सिकनेस, में भी इलनेस, या घर की कोई दिक्कत आ गई या कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत आ गई, उन किसी कारण जो उसका आउट ऑफ कंट्रोल है वो तो नहीं कर पाए। टोटल आप देखिए, आउट ऑफ 410 स्टूडेंट्स 13 बच्चे, 13 students could not do the training, rest 96.8% have completed their training। Likewise, in 2017, 389 students से 387 students ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। Almost each class has done perfectly well with the 100% in second year, except the 2 classes of electrical and chemical। Again, these are the points where the students has not or could not complete beyond their control। Again, in the 2000 trainings for the third year I'm talking about, that was for the second year, 481 बच्चे थे, out of 481, 478 students have done their training। Again, a marvelous training, 99%। 2018 में भी देखेंगे आप, सेकेंड ईयर के बच्चों ने 416 में 415, जस्ट एक बच्चा जो है मैकेनिकल का ट्रेनिंग नहीं कर पाया, अदरवाइज अगेन इट वाज 99%। 2010 same, 19, almost 89% could complete their training in second year। Training 2019, again 94.5% students could complete their training, 25 students, this is the maximum number of students जो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए पिछले 4-5 साल में 2019 के। कुछ मैं बताना चाहूँगा ट्रेनिंग के बाद हमारी जो ट्रेनिंग है, इसमें जो जितना अच्छी मेहनत करेगा उतना अच्छा कामयाब हो जाएगा, जो जितनी कम इसमें काम करेगा, शॉर्टकट ढूंढेगा, जाएगा नहीं ट्रेनिंग पे। हालांकि हमारे चेक है, और बतला दें आजकल हम चेक करने के लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आपके वहाँ पे ईमेल थ्रू आपके पिक्स मंगाएंगे विद बैकग्राउंड, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, एवरी डे आपने अपने वो भेजने होंगे व्हाट्सएप पे। आप जॉब लोकेशन देखिए, मोबाइल लोकेशन भी सर्च करेंगे आने के बाद। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्काउंजर होते हैं या इस तरह से अवॉइड करते हैं। Otherwise, it is your task how to do it. Now you are to be self-responsible। आप अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेंगे तो कामयाब होंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो थोक व्यापारी बन के यहाँ से निकलेंगे। थोक व्यापारी किस चीज के, रीअपियर, फिर कहेंगे अभी मैंने पेपर दे दिया, मेरा 2 पेपर तोड़ने पेपर है तोड़ दूंगा। धनुष थोड़ी है जो तोड़ना है, ये तो रीअपियर है जो आप उसी साल क्लियर कर जाते हैं। आपके पास बेहतर ऑप्शन होती है, अगर आप एक बार रीअपियर लेने लग गए, फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया, फिर वो सोचता है कोई नहीं, पहला दूसरा तीसरा, और जाते जाते 10-15 पेपर कर लेते हैं या 5-10 कर लेते हैं, उनसे डिग्री नहीं होती, और वो ना कभी इंडस्ट्री में कैंपस प्लेसमेंट में आ पाते हैं, बैठ पाते हैं। उनके लिए सौपन
था स्वप्न ही रह जाएगा, उन्हें कभी कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए जो बच्चे हमारे 20% 21% बच्चे हैं, उनमें आप ना 10-11% सॉरी, क्योंकि वी हैव अराउंड 85-89% प्लेसमेंट। तो अगर आप उन 10% बच्चे हैं, उन 10 में हो सकता है किसी कारण से उनके डिफरेंट रीजन रहे हो, पर 4-5% बच्चे जो थोक व्यापारी बनते, कृपया आप थोक व्यापारी ना बनिए, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा। और आपने अपना मंजिल फर्स्ट सेमेस्टर से तय करना है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रिपेयर है। ज्यादातर बच्चे, मुझे नहीं पता क्या कारण है, 10+2 के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स की खूब जम के तैयारी करते हैं, और जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, सबसे ज्यादा रिपेयर थ्रू आउट योर इंटायर 4 ईयर रिकॉर्ड, इफ यू कम टू, सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में रहती है। आई डू नॉट नो, इधर यू आर ओवर कॉन्फिडेंट या और कोई रीजन है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। आप सोचते हैं तो मैं फिजिक्स कर ही लूंगा, इंग्लिश कर ही लूंगा, केमिस्ट्री कर ही लूंगा, यहाँ पे आप मार खा जाएंगे। इसलिए और कॉन्फिडेंट मत रहिए जब तक आप यहाँ हैं। इंश्योर करें आपका कोई भी रिपेयर गलती से आ भी जाए तो उसको पहले अटेम्प्ट में तोड़ करके और आपने दूसरे सेमेस्टर में रिपेयर ना लें। आपके पापा को, आपके परिवार को बहुत आशा आपसे कि मेरा बच्चा बीटेक करने के बाद उस कंपनी में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, आईएएस बनेगा, एचसीएस बनेगा, या चीजें में कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज। और आपकी नौकरी के साथ साथ आप अकेले नहीं हो, आपका पूरा परिवार खुश हो जाता है, माँ बाप भाई बहन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। ठीक है, आप कई लोग गांव से भी आए हुए हैं, तो आपने देखना उस माहौल से बदलाव में आकर के आप भीड़ में ना गुम हो जाएं। आपने अपने ट्रैक को ठीक रखना है। दोस्त आप चुन के देखिए, दोस्त आपके साथ है, उन दोस्तों को जो अच्छे दोस्त उनके साथ दोस्ती कीजिए। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी। ये मैंने कुछ अलुमनाई हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा इसमें आप हर एक बच्चे का नाम आज से 5 साल बाद हम डाल पाए या 10 साल बाद डाल पाए। आप उस लेवल के प्रोडक्ट यहाँ से निकले, उस लेवल के पर्सनालिटी डेवलप करके यहाँ से निकलें कि जिसपे हमें भी आप पे नाज हो, आपके परिवार को भी आपके ऊपर नाज हो, गर्व हो। हम कहें ये मेरा बच्चा है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का लड़का है। और हम जहाँ भी जाएं बताएं, जैसे हम मलिक जी का नाम लेते हो, आईएएस बन गया, एचसीएस बन गया, उन बच्चों के नाम लेते या जो अलुमनाई जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, ये किसी किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, किसी में प्रेसिडेंट है, किसी में डीजीएम है, एएसएम है, ये है। ये कुछ कंपनी के साथ हमारे एमओयू है, may not be relevant. So at the end, thanks to each and everyone who has spent time, spare your valuable times. If you have any doubts on any of these issues, you are free to raise your queries. You to your teacher concerned, those who are interacting with you. If you want, you can directly make a call to me. Note down my number 9416 42915। रिपीट 94 163 42 915। If you want to send the email, you are free to do it. Note down the mail tpo @dcrustm.org. Beside this, you can contact your teachers, you can contact your faculty coordinators, you can contact the chairperson, or presently you can contact the person those who are in charge of the induction, Professor Manoj Duhan and or his team. And so they are working day and night to have this kind of the induction. First time we are doing this online induction program. So I congratulate to each and every students for getting admission in this university, and hopefully your aim should be fulfilled by getting a good job after completion of your 4th year. At the same time, I congratulate to each and every staff faculty, maybe Kuldeep, maybe ma'am, Sima ma'am, those who are part and parcel of this induction program. They are very nicely organizing this event. I thank each and everyone under the able guidance of our Honorable Vice Chancellor, Shri Rajan Kumar Nayak ji, our Registrar, Shri R.D. Kaushik ji. So thanks once again to each and everyone.
गुड डे टू दैट। ठीक है, कितना टाइम का हो गया?